Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Today's session we'll dedicate to Surah Kahf alone. According to our hadith, we know that it's our protection against Dajjal and our protection in testing times and a guiding light between two Fridays. हम हर जुम्मे के दिन सूरह कहफ अरबी के अंदर पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर, उसके कंटेंट्स, उस पर गौर व फ़िक्र, ये सब किए बगैर ये दोनों फ़ायदे हमें हासिल नहीं हो सकते. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर रिसाइटिंग इट इन अ लैंग्वेज दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड. सो अनलेस वी नो द मैसेज, अनलेस वी नो द कंटेंट्स, we wouldn't be able to grasp the importance of those contents. So we must do with Surah Kahf जो हमें पूरे कुरान के साथ करना चाहिए, जो कुरान के 5 हकूक़ हैं, कि यकीन करें सबसे पहले तो कि ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह की तरफ से आई हुई है. And in the context of Surah Kahf, just believe, because the Prophet ﷺ said it will protect you, so it will protect you. It will be the guiding light, so it will be the guiding light, because the Prophet ﷺ said so. So the first thing is to believe in it. The second thing is to recite, which we all do, but tilawat का मतलब अल्लाह ताला के यहाँ क्या है. Number third is to understand. The third haqq of Quran is to understand it and to absorb it. And the fourth right of the Quran is to apply it on our lives, personal and societal and governmental and everywhere on the earth. So we apply it on our lives and convey it to the people who do not know. सो ये 5 हुकूक़ हैं कुरान के, और यही 5 काम हमने सूरह कहफ के साथ भी करने कि उसके कंटेंट्स के बारे में हमने देखना है कि इसके कंटेंट्स जो हैं वो हमें किस तरह से मुश्किल वक्तों में हमारी हिफाजत करते हैं और हमारे लिए गाइडिंग लाइट प्रोवाइड करते हैं. सो यू ऑल नो देयर आर 4 स्टोरीज एंड 4 टेस्ट्स इन दिस सूरा. The first test is the test of faith in the context of the story of the people of cave. So the story, you all know the story. So what is the test? What is, you have to hold on to your iman and deen even when the test is hard, and even if you have to leave your home, and even if you're persecuted and tried by a very powerful oppressing army who claims to be God. Do not let them take your iman away. So this is the test that they went through, the people of the cave, and this is the guiding light for us, that you will be tried, you will be oppressed, you will be tested in times when there will be test of your faith, and hold on to your faith and hold on to your iman. Nothing is worth your faith, nothing is worth your iman. And the second story is the story of 2 gardens and the test of wealth. So Allah, इस story से क्या पता चलता है? Allah owns all wealth and He has charge, and we are only the custodians. हमें सिर्फ अमानत के तौर पर ये wealth दी गई है. He has given us the wealth and we are not the owners. So He has the charge. वो देता है जब चाहता है और लेता है जब चाहता है. Even if you have everything, in those stories से क्या पता चला कि even if you have everything in the world and you do not have Allah, you are the real losers, despite having all that the world craves for, to own and to show off. जो कुछ दुनिया कमाना चाहती है, ओन करना चाहती है, लोगों को दिखाना चाहती है, उस पर बोस्ट अबाउट करना चाहती है, उसके बलबूते के ऊपर चौड़े होकर चलना चाहती है, उस सब से बेहतर क्या है कि आपके पास अल्लाह हो, बेशक और कुछ भी ना हो. बट इफ़ यू हैव Allah alone and you have nothing else, just know that you have everything. So it just kills all the narratives of my life, my rules, my strategy, my plans, or I got this because I deserve this and this will always stay with me, and if Allah takes it from me, if someone takes it from me, I'll get better than this and I'll always get this because I deserve this, because I'm so intelligent, because I'm so powerful, because I'm so rich. ये सब चीज़ों की negation अल्लाह ताला कहते हैं. अल्लाह ताला कहते हैं I have the charge. Allah can turn these fallacies upside down overnight. मतलब आज आप कुछ हैं, कल आप कुछ हो सकते हैं. Within a matter of minutes दिवालिया हो सकते हैं, bankrupt हो सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि वो चार्ज तो आपके पास था ही नहीं. वो तो सब अमानतें थी जो अल्लाह ताला ने दी थी. वो कभी भी ले सकता है, ओनरशिप अभी भी उसी की है. And then there is the third story of Musa alayhi salam, and that is the test of knowledge. So, and what do you get out of this test? Get out of this story, whatever knowledge that you have is limited. The only unlimited ilm is Allah's knowledge. He has given us, each of us, a chunk of what He knows. हम बहुत बहुत कम जानते हैं जितना मर्जी हम जानते हों. Allah owns all knowledge. And wrong will be wrong, and even if the whole world is doing it. जो भी अल्लाह ताला ने हराम काम कहे हैं कि ये हराम है, ये नहीं करने, बेशर्मी के काम हैं, होमोसेक्सुअलिटी है,
हराम खाना है, हराम वेज़ की तरफ चलना है, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने किसी वजह से इनको फॉरबिडन किया है, किसी वजह से मुझे और आपको रोका है। वो वजह मुझे और आपको समझ आए या ना आए, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट अल्लाह हैज़ दिस नॉलेज एंड अल्लाह नोज़ बेटर, एंड दैट इज़ वाई अल्लाह हैज़ फॉरबिडन इट फॉर अ रीज़न, एंड वट एवर राइट विल बी राइट इवन इफ़ यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ एक्टिंग अपॉन इट, एंड इट इज़ recommended and it is allowed for a reason, or it has been put on me as a rule for a reason. मसलन ये कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जो है काम दिए करने को, बाज़ औक़ात हमें नहीं अच्छे लगते, बाज़ औक़ात हमें अल्लाह ताला के हुक्म पे चलने से हमारी सोसाइटी छूटती है, हमारी बरादरी छूटती है, हमारी जॉब छूटती है, बाज़ औक़ात हमारी चीज़ें, हमारी फैमिली हमसे दूर हो जाती है, अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ चलना शुरू करें। तो बात यह है कि अगर हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह ताला के रास्ते पर चल रहे हैं, सो इवन इफ़ वी आर अलोन वी आर डूइंग इट राइट। और अल्लाह ताला ने जो काम हमें करने का हुक्म दिया है, जो हमें पसंद नहीं आते हैं, उसमें भी यही रूल है कि दे आर देयर फॉर अ रीज़न, वो हमारे अपने ही भले के लिए। यहाँ सूरह मुल्क की एक आयत मुझे याद आ रही है कि क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया, सो ही नोज़ व्हाट यू डू नॉट नो, ही इज़ द क्रिएटर, सो ही नोज़ अस, ही नोज़ अ मैन, ही नोज़ अ वुमन, ही नोज़ के हमारे लिए बेहतर क्या है, हमारे लिए कवर करना बेहतर है, हमारे लिए ना कवर करने में क्या नुकसान आते हैं। छोटी छोटी इस तरह की बातें हैं, जब आप गौर करते चले जाइए तो मुझे और आपको पता चलेगा कि हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमसे कहा है करने को, वो हमारे अपने भले के लिए है। और अल्लाह ताला हमारी फ़ितरतों से वाकिफ़ है, इसीलिए उसने हलाल और हराम की ये बंदिशें हमारे ऊपर लगाई हैं। फोर्थ स्टोरी इज़ द स्टोरी ऑफ ज़ुल्करनैन, द टेस्ट ऑफ पावर. And Allah tests you with power. And what do you get out of the story? That all power is with Allah, and He has given you only a part of the power, so never abuse it. It is He who is actually in control over everything. Be just. और जितनी भी पनिशमेंट्स और रिवॉर्ड्स हैं वो अल्लाह ताला के हाथ में है। जब मुझे और आपको वो पावर देता है तो हमें पनिशमेंट और रिवॉर्ड का इख्तियार भी देता है, और वो हमारा टेस्ट होता है कि हमारी हायरिंग एंड फायरिंग में या पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स में हम किसी के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं कर रहे होते। क्या ये चीज़ ऑलवेज़ एट द बैक ऑफ आवर माइंड होती है कि ये इस चीज़ का हिसाब होगा अल्लाह ताला, देयर समवन वाचिंग ओवर मी एज़ वेल, आई एम नॉट ओमनीपोटेंट, मैं हर चीज़ पे कादिर नहीं हूँ, कादिर तो सिर्फ वही है। So you can hire and fire with power, but righteousness is to protect yourself from abuse and corruption that power brings to you as a test. Remember, Allah is more powerful than you, and all the beings are equally helpless. All the human beings are equally helpless in front of Him. चाहे powerful यहाँ हो या powerless हो, अल्लाह ताला के सामने सब एक ही जैसे बेबस होंगे। So what is the connection with Dajjal? You know, Dajjal is an individual, अल्लाह ताला Prophet sallallahu alaihi wasallam की हदीसों में जिसका जिक्र है कि he would have immense powers, और उसकी पावर्स इतनी मेस्मराइजिंग होगी कि सुबह इंसान मोमिन होगा और शाम को काफिर बन जाएगा, शाम को अपना दीन छोड़ देगा। उसके पास पावर होगी कि आपको रिच कर दे, आपको पोर कर दे, आपको स्टार्व टू डेथ कर दे, और उस वक्त अपना होल्डिंग ऑन टू ईमान वुड बी अ डिफ़िकल्ट थिंग। But there's a whole system of the Dajjal that is already started to work. जिन difficult times से हम गुजरे हैं, there are times of deception. आम लोग भी कहते हैं, not only religious लोग, आम लोग भी कहते हैं these are the times of deception. जो नज़र आ रहा है वो है नहीं, जो नहीं नज़र आ रहा, आप मतलब seeing is not believing anymore. आपको confusion का दौर है, lots and lots of information है but little knowledge है. So there are difficult times have already started, and this is the fitna of the Dajjal that has already started. So these Dajjal and the forces and the systems of the Dajjal are immensely powerful. They have the power to take away your faith and act as gods and controllers of this world. They can give you crops and irrigate your land. They can make you rich, or they can starve you to death. They send you, and they can send you to Stone Age. Sometimes they say, we'll send you to Stone Age if you don't believe, if you don't come walk along with us, you are going to Stone Age. They can confuse you with overwhelming information, take away your knowledge, leave you confused about what is truth and what is falsehood. They have the power to give you life and death like Pharaoh. They can capture people, punish them for their faith, kill them, and even wipe the whole generations if you disobey them. So this is already started to work, and we are living in difficult times, and it is quite difficult to hold on to your faith. अगर अल्लाह ताला ही ना चाहे तो आप कैसे अपने दीन पर कायम रहेंगे? Protection against the Dajjal, फिर हमें क्या करना है? Now I will put some striking verses in front of you. So these three things will protect you against the Dajjal. क्या अल्लाह ताला क्या कहते हैं? And recite, O Muhammad, what has been revealed to you of the book of your Lord. क्या करना है? हमें कुरान को पकड़ के रहना है. Not only recite, यहाँ recite का मतलब है अल्लाह ताला जब तिलावत की बात करते हैं तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वो ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि उसके पढ़ने का हक है,
उनकी आंखों से आंसू तारी हो जाते हैं, वो उनके दिल लरस जाते हैं। ये इनको कुरान के लिए अल्लाह कहते हैं वो हिदायत है, रहमत है और हर उस चीज़ से बेहतर है जिसे ये लोग समेट रहे हैं। सो होल्ड ऑन टू द बुक, होल्ड ऑन टू व्हाट इज़ रिवील्ड टू यू। पहला मेरा और आपका डिफेंस क्या है? होल्ड ऑन टू द बुक, रिसाइट द बुक, अंडरस्टैंड द बुक, फॉलो द बुक, and there's no changer of his words, and never will you find a refuge in anyone other than him. पहला पॉइंट ये है कि hold on to the book. ये कुरान will be our guide during testing times. Number 2, keep yourself patient with being in the company of those who call upon their Lord morning and evening, seeking their acceptance, and your company. Find a company which reminds you of God, not the company that takes you away from God, and do not let your eyes pass beyond them, desiring adornments of this world. यानी उन लोगों को छोड़कर ऐसे लोगों की तरफ या ऐसी चमक दमक की तरफ अट्रैक्ट मत हो जो कि सिर्फ इस दुनिया की ज़िंदगी से जिसका ताल्लुक़ है। And do not obey the one whose heart we have made heedless of our remembrance. और उस दोस्त और उस कंपनी में मत बैठो जिनके दिल हमने अल्लाह की याद से गाफिल कर दिए हैं। And who follows his desire, और वो क्या करते हैं? अपने नफ्स की पैरवी करते हैं। They do what they want to do to achieve this worldly life. They will do all the haram things and it doesn't matter to them कि हम उनको अचीव चुके करना है दुनिया के अंदर। वो अपने नफ्स की पैरवी किए चले जाते हैं। उनके दिल जो है वो क्या है? अल्लाह की याद से गाफिल हैं। So we made them heedless of our remembrance, and who follows his desire and whose affair is in ever neglect. वो गफलत में पड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को फॉलो ना करें। So this is our second line of defense. The first one was holding on to the book. The second one is choose a company that makes you stick to that book, makes you closer to Allah. That reminds me of a hadith which says, among Allah's servants are people who are neither prophets nor martyrs. Allah के बंदों में ऐसे लोग हैं जो ना नबी हैं ना शहीद हैं, but whom the prophets and martyrs will deem fortunate because of their high status. लेकिन prophets और शहीद शुहदा जो हैं उस दिन क्या कहेंगे? उन पर रश करेंगे। ऐसे कौन लोग हैं? The companions asked, O messenger of Allah, inform of who they are. ऐसे कौन लोग हैं जो जिन पे नबी और अंबिया और शुहदा उन पर रश करेंगे? तो the Prophet sallallahu alaihi wasallam told them that they are the people who loved each other for Allah's sake, and even without being related to one another or being tied to one another by the exchange of wealth. ना वो रिश्तेदार हैं, ना उनका कोई पैसे का लेन देन है, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। The Prophet sallallahu alaihi wasallam went on to describe their great rewards on the day of resurrection. By Allah, their faces will be luminous, and there will be light upon them. They will feel no fear, and the people will be feeling fear, and they will feel no grief, and the people will be grieving. Then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam read the verse, behold, verily on the friends of Allah there is no fear, nor shall they grieve. यानी इस पॉइंट में से जो मैं कंपनी वाली आपसे बात कर रही हूँ कि उन लोगों की मैयत पर, उन लोगों की कंपनी पर अपने दिल को मुतमईन करें जो अल्लाह ताला से करीब करने वाले हैं आपको, और आपका और उनका रिश्ता जो है वो सिर्फ ला इलाहा की बुनियाद पर और अल्लाह की इस किताब की वजह से कायम हो। तो और अल्लाह ताला हमें उन ऐसे लोगों में शामिल करे जिन पर अंबिया और शुहदा रश करते हों, जिनके माथे क़यामत वाले दिन चमक रहे होंगे। And then third line of defense against the fitna is, and say, this is the truth from your Lord, and whoever wills let him believe, and whoever wills let him disbelieve. यानी ये किताब है, ये हक है जिसको हम मानते हैं, तुम्हारा दिल चाहे तो मानो और तुम्हारा दिल चाहे तो नहीं मानो। यानी convey to them the message. So the first line of defense against the times of fitna was holding on to the Quran. Second, you chose a company that brings you closer to Allah, and you turned away from the people whose heart is heedless of Allah's remembrance, and जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे लगे हुए हैं, जिनके लिए दुनिया ही की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज़ कि जो लोग अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे लगे हुए हैं और जो लोग इस मैसेज को नहीं मानते, उन तक आपका काम ये है कि उस मैसेज को कम से कम कन्वे करते रहें, कम से कम उनको ये बता दें कि वो आखिरत के दिन आपको ये ना कह सकें कि हमें तो किसी ने नहीं बताया। यू न्यू द मैसेज एंड यू डिडंट टेल अस, यू हैड दिस बुक इन योर हाउस, यू हैड दिस बुक दैट यू फॉलोड, बट यू नेवर इन्वाइटेड अस टू दिस बुक। सो योर जॉब इज़ द सेम जॉब दैट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ लेफ्ट बिहाइंड टू कन्वे द मैसेज ऑफ ट्रूथ, कि उन लोगों तक इस पैगाम को कम से कम पहुँचा दिया जाए। एंड
इस काम के अंदर जब तक मैं और आप अपने आप को इंगेज रखेंगे, फॉलोइंग द बुक एंड कन्वेइंग द बुक, हम इस फितने से बचे रहेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में बार बार ये बात कही, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट, दावा, इन्वाइटिंग पीपल टू द वे ऑफ अल्लाह ताला। एंड देयर इज़ अ हदीस व्हिच आई वुड लाइक टू कोट हियर के कन्वे टू दम इवन इफ़ इट्स वन आया, अगर आपको एक भी आयत मालूम है, एक भी हदीस मालूम है, या आपने कुरान का इल्म हासिल किया हुआ है, हदीस आपको मालूम है, आयत आपको मालूम है, कोई बात आप अपनी तरफ से नहीं घड़ रहे हैं, और अगर कोई इंटरप्रिटेशन आपने मुफस्सिरीन की किताब के अंदर पढ़ी है और आपको मालूम है कि आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी तरफ से नहीं है, बल्कि किसी स्कॉलर की बात आपने सुनी थी और किसी स्कॉलर ने उसको इंटरप्रेट ऐसे किया था और आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू हैव अ फुल फंड ऑफ नॉलेज ऑफ इस्लाम। दिस कभी भी हो नहीं सकता कि आपके पास पूरा का पूरा इस्लाम का इल्म होगा और आप फिर ये दावत का काम शुरू करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि एक आयत सुन ली, उसको आगे पहुंचाओ, वट एवर यू नो कन्वेर, क्योंकि वी डोंट नो हमें अल्लाह ताला ने कितनी ज़िंदगी दी है, जितनी आपको नॉलेज अल्लाह ताला ने दी है, जितना कुरान आपको आता है, जितनी हदीस आपको आती है, जितनी तफासिर आपने पढ़ी हैं, उसको आगे पहुंचाना आपका और मेरा काम है, विदाउट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम इट। हम कोई बात ज़ाहिर है अल्लाह ताला के ऊपर रख कर या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रख कर कोई झूठ घड़ेंगे खुदा ना खास्ता, तो उसका जवाब, उसका वबाल हमारे ऊपर होगा, उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। लेकिन जितना हम जानते हैं उसको छुपाएंगे तो उसका भी वबाल हमारे ऊपर होगा कि तुम्हें आता था, तुम्हें मालूम था, तुमने पढ़ी थी ये बात, लेकिन तुमने बताया नहीं, तुमने नेकी का हुक्म नहीं दिया, तुमने रोका नहीं। और आपको और मुझको याद रखना है कि नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले ही इन दी एंड बचा लिए जाते हैं। सो दिस इज़ द जॉब वी शुड नेवर लीव। सो दीज आर द थिंग्स दैट वुड protect you in the testing times, protect you and me in the testing times, when holding on to the faith would be like holding on to a piece of burnt coal, जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ने, अंगारे को हाथ में पकड़ने के बराबर होगा दीन पर चलना। उस वक्त ये तीन चीज़ें मुझे और आपको बचाएंगी। उसके बाद there's a couple of striking verses that I marked in this end of Surah Kahf। ये बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है जिस कॉन्टेक्स्ट में वो टेस्ट और स्टोरीज आई थी कि wealth and children are adornment of life, but enduring good deeds are better to your Lord for reward and better for one's hope, and warn of the day, उस दिन से डरो, उस दिन से डराओ, when we will remove the mountains and expose the earth and we'll gather all of them leaving behind none, हम सबको ले आएंगे, किसी एक को भी ना छोड़ेंगे। and they will be presented before your Lord in rows, और हम वो लोग कतारें बनाकर अपने रब के आगे हाजिर हो जाएंगे क़यामत के दिन। and the record of the deeds scrolls will be laid open, नामा अमाल खोल दिए जाएंगे, and you will see criminals fearful of the contents and they will say woe to us, what kind of a book is this, ये किस किस्म की किताब है, हमारी कमबख्ती ये किस किस्म की किताब है। woe to us, what kind of a book is this that leaves nothing small or great unrecorded, कुछ भी नहीं छोड़ा इस किताब ने, ना छोटा ना बड़ा, हर एक्शन मेरा इसमें लिखा हुआ है। and they will find in it whatever they did, and your Lord does justice to no one. It's so easy to understand this in these times. You know, people used to believe in this verse when they weren't in the times of technology, but today everything we write on WhatsApp, on our iMessages, on your messages, on your emails, you talk to your mother, you talk to your friends, everything is being recorded by someone. You know it. You are being watched, you are being recorded, your faces are scanned, your language is checked, everything. So how is it difficult for Allah to do this? And Allah Ta'ala कहते हैं, कल भी ये आयत आई थी कि आज तुम अपना हिसाब लेने के लिए खुद काफ़ी हो, देखो अपना नामा माल, हम तो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। This is what you did, what do you expect us to do now? So say, O Muhammad, shall we inform you of the greatest losers with their regards to their deeds? हम बताएं सबसे ज़्यादा खसारे में पढ़ने वाले लोग कौन हैं? प्रॉफेट सल्लम को अल्लाह ताला कहते हैं क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन है वो लोग जो खसारे में पड़ गए, जो दिवालिया हो गए, जो बैंकरप्ट हो गए, जिनके पास कुछ नहीं बचेगा क़यामत के दिन, खाली होंगे उनकी गुड डीड्स। कौन लोग हैं? They are those whose effort is lost in this worldly life, away from the right path, जिनकी सारी सही और जिद्दोजहद राह रास्त से भटकी हुई रही, कुरान से दूर रही, इस रास्ते से हटी हुई रही, और वो फिर भी ये समझते रहे कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। Those are the ones who disbelieve in the verses of their Lord। असल कुफ्र तो यही है ना कि आप किताब है आप मानते नहीं, किताब पढ़ते हैं उस पर चलते नहीं, किताब सलूशन देती है उसे लेते नहीं, किताब रोकती है उससे रुकते नहीं।
What else is disbelief? This is the disbelief that we are doing. There are those whose effort is lost in the worldly life away from the right path while they think they are doing well. They are the ones who disbelieve in the verses of their Lord and His meeting. All their deeds become worthless. This is a very dangerous verse. उनके सब आमाल अल्लाह ने ज़ाया कर दिए. And we will not assign any weight or importance to them on the day of resurrection. और क़यामत के दिन हम उन्हें कोई वज़न नहीं देंगे. आप समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, हम बड़ी बड़ी नेकियां लेके अल्लाह ताला के पास पहुँचेंगे. ये सबसे बड़ा दिवालिया है कि खुदा न खास्ता वहाँ पहुँचें और वहाँ कुछ ना पाएँ. So all their deeds become worthless, and we will not assign to them any weight or importance to them on the day of resurrection. That is their recompense, hell, because they denied and because they took my signs and my messengers in ridicule. क्योंकि एक तो उन्होंने झुटलाया और दूसरी बात यह कि उन्होंने मेरी आयात का, मेरी निशानियों का और मेरे मैसेंजर्स का, मेरे नबियों का मजाक उड़ाया. Indeed, those who have believed and done righteous deed. इसके मुकाबले में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जो लोग ईमान ले आएँ और अपने अमल उसके मुताबिक दुरुस्त कर लें. They will have the gardens of paradise as a lodging wherein they will abide eternally. और उनको क्या मिलेगा? जन्नत के बागात जहाँ वो हमेशा रहेंगे. और न सिर्फ कि हमेशा रहेंगे बल्कि they will not desire to go anywhere outside. फिर उनका वहाँ से कहीं जाने को दिल नहीं चाहेगा. और फिर आखिर में अल्लाह ताला क्लोज किस तरह करते हैं? Say, if the sea were ink for the writing the words of my Lord, the sea would be exhausted before the words of my Lord were exhausted. And even if we brought another supply of the same amount of ink, यानी अल्लाह ताला की जो नॉलेज है, अल्लाह ताला का जो इल्म है, वो इस कदर ज़्यादा है, इस कदर हमारे मुकाबले, हमारे पास बहुत थोड़ा सा इल्म है, हमारे पास बहुत थोड़ी सी अक्ल, थोड़ी सी समझ है, थोड़ी सी नॉलेज है. लेकिन अल्लाह ताला की बातें जो हैं वो पूरी समंदर भी अगर रोशनाइयाँ बन जाएं तो अल्लाह ताला की बातें उससे ख़त्म नहीं होंगी. समंदर ख़त्म हो जाएगा, एक और समंदर लाया जाए तो वो भी ख़त्म हो जाएगा. से आई एम ओनली अ मैन लाइक यू. सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि आप बता दीजिए कि मैं तुम्हारे ही जैसा इंसान हूँ जिसके ऊपर खुदा की आयात उतारी गई हैं. टू whom has been revealed that your God is one. और सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है. So whoever hopes to meet his Lord, he should do righteous deeds and do not associate any partners with him in worship. So जो अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता हो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराए. यानी अल्लाह ताला जैसी किसी की इबादत ना करे, अल्लाह ताला जैसी किसी की बात ना माने, ऐसे किसी की ओबीडियंस ना करे जैसे अल्लाह की करनी चाहिए. अल्लाह को छोड़कर किसी और की बात मानना, अल्लाह ताला के अहकामात को साइड पे रख कर अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना, दूसरे खुदा बना लेना, दिस इज़ व्हाट आइडल वर्शिपिंग इज़. सो हम इस शिर्क से भी बचें और हम अल्लाह ताला की इस किताब को पकड़ के रखें और उसके मुताबिक अपने अमाल को दुरुस्त कर लें. हर टेस्टिंग टाइम्स में यही हमारी गाइड हो, नेक लोग हमारी कंपनी में हों और हम अल्लाह ताला के दीन की दावत का काम आखिरी दम तक करते रहें. दिस इज़ व्हाट सेव्स अस फ्रॉम द फितनास एंड फ्रॉम द पनिशमेंट्स एंड फ्रॉम द ट्रायल्स ऑफ दिस वर्ल्ड. Jazakallah khair for listening to me. Today we only covered Surah Kahf. Tomorrow we'll come back with the next Surah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullah.